ٹی ود آصف کھیتران کے حوالے سے میری خواہش تھی کہ میں اپنے ویور کو لے کے چلوں اپنے اس ادارے کی طرف جہاں سے میں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا ایک پروفیشنل طریقے سے. جی ہاں، ریڈیو پاکستان ملتان جی. اور ریڈیو پاکستان میں عمر عزیز کے 35 سال میں نے گزارے اور الحمدللہ بہت عزت سے گزارے. صرف ریڈیو پاکستان ملتان میں نہیں، پاکستان کے مختلف شہروں میں کام کرنے کا موقع ملا، لیکن زیادہ مجھے ریڈیو پاکستان ملتان میں کام کرنے کا موقع ملا. میں نے یہاں میوزک کے پروڈیوسر کے طور پہ مختلف پروگرامز کے حوالے سے میں نے یہاں پروڈکشن کی. پھر اس کے بعد مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ میں نے یہاا 3 دفعہ اسٹیشن ڈائریکٹر کے طور پہ اپنی خدمات انجام دی ہیں اور ابھی کچھ عرصہ ہی ہوا ریٹائر ہوا ہوں اور اب آپ کے ساتھ ہوں این نیوز HD کے ساتھ. آج ہم نے کہا ہم چائے پیتے ہیں چل کے اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ جنہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا اور ریڈیو کی آپ کو سیر بھی کرواتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں، چل کے بات کرتے ہیں یہاں کے دوستوں کے ساتھ. میرے ساتھ موجود ہیں اسٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان جناب خالد اقبال صاحب. خالد صاحب کیسی ہیں؟ آپ تشریف رکھیے، آپ سے باتیں بھی ہوں گی، آپ سے تفصیلات بھی لیتے ہیں. تشریف رکھیے. آپ کے ہوتے ہوئے میں بیٹھ نہیں سکتا. نہیں خالد آپ تشریف رکھیے. محترم، ایسا میں عرض کروں کہ ریڈیو پاکستان کا قیام ملتان کا عمل میں آیا تھا 21 نومبر 1970 اور اس وقت سے لے کے آج تک جنوبی پنجاب کے اس علاقے کو آواز ملی، یہاں کے آرٹسٹوں کو، یہاں کے فنکاروں کو، یہاں کے موسیقی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو. اور آج جو ہمارے ساتھی ہیں، اگر میں اپنے ویور کو دکھاؤں تو ایک لمبی فہرست ہے جہاں سربراہی کی اس ادارے کی ریڈیو پاکستان کی، اور آج جو اس ادارے کے سربراہ ہیں وہ خالد اقبال صاحب ہیں. خالد اقبال صاحب صرف ریڈیو پاکستان ملتان کے اسٹیشن ڈائریکٹر نہیں ہیں، ادب کے حوالے سے، موسیقی کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے اس پورے خطے کا. تو آئیے ان سے باتیں بھی کرتی ہیں اور ریڈیو پاکستان کے حوالے سے بات بھی کرتے ہیں. خالد بھائی کیسا جا رہا ہے ریڈیو پاکستان؟ ریڈیو بہت اچھا جا رہا ہے جی، ماشاءاللہ. لسنر میں آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح سے پاپولر ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں ریڈیو پاکستان ملتان اور ہمیں ایک موقع دیا ہے. ہم آپ کے چینل کے توسط سے اپنے حوالے سے، ریڈیو کے حوالے سے کچھ باتیں شیئر کریں گے. آپ کا کیونکہ ریڈیو پاکستان سے خود بہت طویل عرصہ تک آپ کی رفاقت رہی، آپ نے بہت اچھے اچھے پروگرام کیے، اور کون کون سے پروگرام اب میں گنواؤں جو آپ نے نہیں کیے ماشاءاللہ. خاص طور پہ میوزک میں آپ کی بہت کنٹریبیوشن ہے، اور جو ریڈیو سے باہر آؤٹ سائڈ براڈ کاسٹ جس کو کہتے ہیں اس حوالے سے بھی آپ نے شاندار پروگرام کیے. تو بہرحال مجھے موقع ملا ہے ریڈیو پاکستان ملتان میں یعنی اپنی خدمات سر انجام دینے کا. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اور ہمارے ہو سکتا ہے ناظرین کے بھی کچھ جو جاننے والے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہو کہ میں نے اپنا آغاز ریڈیو پاکستان سے پروڈیوسر کی حیثیت سے آغاز کیا، اور آج الحمدللہ اس منصب تک پہنچے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے. تو باقی جہاں تک تعلق ہے کہ ان دنوں ہم کیا کر رہے ہیں، تو میری کوشش یہ ہے کہ ریڈیو پاکستان جیسا کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ ایک اکیڈمی ہے ہمارے آرٹسٹ کے لیے، ہمارے جو فنکار ہیں یا دیگر شعبوں سے جو متعلق ہیں فنون لطیف سے، ان کے لیے یہ ایک ایسا پلیٹ فارم، یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو نرسری کا کام دیتا ہے. تو ہماری یہ کوشش ہے اپنے پروگراموں کے توسط سے کہ اپنے سامعین کے لیے بہتر سے بہتر پروگرام پیش کریں. ہمارے ڈائریکٹر جنرل جناب طاہر حسن صاحب کا ویژن ہے کہ ریڈیو پاکستان کو فی زمانہ جو سوشل میڈیا ہمارے ساتھ آیا ہے تو اس کے ساتھ ہم جوائنٹ وینچر کریں ان کے ساتھ مل کے. تو اس میں ہم نے آغاز کیا ہے ایک پوڈ کاسٹ سروس کا، اور اس کے علاوہ جتنے میڈیم ہیں یعنی انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، اور یوٹیوب چینل ریڈیو پاکستان ملتان کا آفیشیل ہے، اس پہ ہم اپنے پروگراموں کو، اور جو ہمارا اثاثہ یا میوزک ہمارے آرکائیو میں موجود ہے اس کو ہم مزید کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہم اپنے ناظرین تک بھی پہنچائیں، کیونکہ ہمارے پہلے سامعین اور ناظرین اب ہمارے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی ہماری کاوشوں کو دیکھ سکیں گے. باقی میری ٹیم الحمدللہ جناب ریاض میلسی صاحب،
ڈپٹی کنٹرولر ہیں جناب جعفر بلوچ صاحب، اور باقی پروڈیوسر، انجینئر جو ٹیم ورک میں شامل ہوتے ہیں، ان تمام کا تعاون مجھے حاصل ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ریڈیو پاکستان ملتان کے پروگراموں کو بہتر سے بہتر انداز میں پیش کریں۔ اقبال صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے ریڈیو پاکستان ملتان سے جہاں اس پورے تقریباً 53 سال میں بہت سارے مختلف پروگرام پیش کیے گئے، تو جو ہمارے ساتھی ہوتے ہیں سربراہ کے طور پہ یہ سارے پروگراموں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اسٹیشن ڈائریکٹر صاحب، لیکن اس کے بعد جو پروگراموں کی ترتیب دیتی ہیں، جو پروگراموں کو پروڈیوسرز میں تقسیم کرتی ہیں اور ان کی نگرانی کرتی ہیں، وہ ہمارے پروگرام مینیجر اور ڈپٹی کنٹرولر پروگرامز ہوتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت پیشہ ور، بہت پروفیشنل ساتھی ریاض میلسی صاحب اور جعفر بلوچ صاحب۔ میں انہیں کہوں گا کہ وہ ہمیں پروگراموں کی تھوڑی سی تفصیل بتائیں۔ ایک نام ہے ریاض میلسی کا، اس سے باتیں بھی کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان ملتان کے پروگرام کیسے کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ریاض کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ تھینک یو، تشریف رکھیں، آپ بیٹھیں۔ ریاض یہ ذرا مائک لے لیں گے، میرے جو ویور ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں، آپ نے یہاں سے آغاز کیا تھا ایک رپورٹر کے طور پہ، آپ بلڈ بینک میں اور اس میں کرتے تھے، پھر آپ نے 1988 میں ریڈیو پاکستان کا آغاز کیا اپنی ملازمت کا۔ اس دوران میں آپ تربت بھی رہے، اس دوران میں آپ مختلف اسٹیشنوں پہ رہے، پھر آپ ملتان بہت زیادہ عرصہ رہے۔ آج ریڈیو پاکستان ملتان کیا کر رہا ہے؟ آپ اپنے کیسے پروگرام دے رہے ہیں؟ ذرا میرے ویورز کو بتائیں۔ بہت شکریہ آصف بھائی، آپ تشریف لائے۔ ذیشان گیلانی صاحب، آپ کے پروڈیوسر ہارون طاہر صاحب، آپ کے کیمرہ مین، آپ کے کمپیئرز، اینکرز، آر جیز، انم اور فرحانہ اور سارے دوست جو ہیں، ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آواز کی دنیا میں تصویر کی دنیا آ گئی ہے۔ واہ! جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سوال کی روشنی میں، ہم اب آواز بھی ہیں، اب تصویر بھی ہیں، سنے بھی جاتے ہیں، دیکھے بھی جاتے ہیں، اور کروٹ لے لی ہے براڈ کاسٹنگ نے، وہی انداز اپنا لیا ہے جو آج دنیا کا خاصہ ہے۔ نشریاتی دنیا جو ہے اب صرف سننے تک محدود نہیں ہے۔ ہمیں جو چیلنجز تھے ٹویٹر کی صورت میں، انسٹاگرام کی صورت میں، واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب، ان تمام چیلنجز پہ ہم نے قابو پانا شروع کر دیا ہے، ان کے ہم قدم ہو گئے ہیں۔ ہم اب جہاں ٹریڈیشنل براڈ کاسٹنگ تھی، الیکٹرانک براڈ کاسٹنگ تھی، اس سے نکل گئے ہیں۔ ہمارے ڈائریکٹر جنرل آنریبل طاہر حسن صاحب، ان کی ہدایت کے مطابق ہم نے الحمدللہ اب پوڈ کاسٹ بھی دے رہے ہیں، ہم یوٹیوب پہ بھی ہیں، انسٹاگرام پہ بھی ہیں، ٹویٹر پہ بھی ہیں، اور فیس بک پہ بھی ہم دیکھے بھی جا رہے ہیں اور سنے بھی جا رہے ہیں۔ ریاض، ہمارے ہاں جو ریڈیو کا کنسپٹ ہے، ہم اسپیشل آڈینس اور ہر کمیونٹی کو ایڈریس کرتے ہیں، تو کون کون سی کمیونٹی کو خاص طور پہ آج کل ہم ایڈریس کر رہے ہیں؟ سر بہت اچھا سوال آپ نے کیا، کیونکہ ہم نیشنل براڈ کاسٹر ہیں اور ہمارے پروگراموں کی جو خوشبو ہے اس میں ملک سے محبت اور قومی امنگوں کے ترجمان کی حیثیت سے ہمیں فخر حاصل ہے کہ ہم یہ پروگرام کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم بچوں کے لیے بھی پروگرام کرتے ہیں۔ بچوں کے لیے جو پروگرام اب ترتیب دیے جاتے ہیں وہ پرانے زمانے کے پروگرام نہیں ہیں، اب ان کو کمپیوٹر، انفارمیشن ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل انداز جو ہے، سائنس، سب کچھ ان کے لیے ہم سیگمنٹس رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہماری بہنوں کا پروگرام ہے، خواتین کا نیشنل نیٹ ورک پہ سکھی گھر کے نام سے تو جا رہا ہے۔ لوکل ہم سرائکی زبان میں ایک پروگرام ہے ہمارا بہنوں کے لیے، وہ بھی ہم کرتے ہیں۔ سگڑ سیانی تو نہیں ہے؟ سگڑ سیانی، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ آپ سگڑ براڈ کاسٹر ہیں تو آپ سے کون سی بات چھپی ہوئی ہے۔ تو سکھی گھر کے ساتھ سگڑ سیانی میں ہماری وہ بہنیں جو مختلف شعبوں میں کام کر کے اپنے آپ کو منوا رہی ہیں، ان کو بھرپور مواقع دے رہے ہیں، وہ تشریف بھی لاتی ہیں۔ اب ان کو ہم اسکائپ پہ بھی لے رہے ہیں، اچھا، آن لائن ان کو ہم ریکارڈ کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے نیشنل کرکٹرز بھی ہیں، اس میں ہماری بیوٹیشین بھی ہیں، اس میں پروفیسرز ہماری بہنیں بھی ہیں، اس میں رائٹرز ہیں، مصور ہیں، فوٹوگرافرز تک ہیں۔ تو سب کو ہم موقع دے رہے ہیں۔ ایون یہ جو کھانے پکانے کے طریقے ہیں
वो अब पुराना सिर्फ दाल साग नहीं पकाती वो अच्छा, वो नहीं, वो आपके लिए नूडल्स और मैक्रोनी भी तैयार करती है। तो ये सारे तरीके सर हम बता रहे। अरे आज ऐसा है कि हम आपसे गुजारिश करेंगे कि ये हम बातें भी करते रहें और हम आपके स्टूडियोज का भी विजिट करते चलें और वहाँ अपने नाजरीन को दिखाते चलें कि हमारे मुख्तलिफ स्टूडियोज जो है उनमें कैसे कैसे हम प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं। तो आइए चलते हैं हम स्टूडियो, तो हम चलते हैं स्टूडियोज की तरफ और चल के देखते हैं हमारे जो स्टूडियोज हैं। और शान भाई, मैं आपको अर्ज करूं कि इस वक्त जो हमारे स्टूडियोज है, अभी हमारे नाजरीन भी देखेंगे, पाकिस्तान भर में ये लेटेस्ट इस तरह से हैं कि जनूबी कोरिया ने हमें ये गिफ्ट किए हैं। इसमें लेटेस्ट मशीनरी लगी हुई है और लेटेस्ट इसका सारा सिलसिला है। ये कमरा क्या है रियाज? इस कमरे को हम क्या कहते हैं? ये इस कमरे को आप आसिफ भाई बहुत अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि राइट फ्रॉम द बिगनिंग आप स्टार्ट तो प्रोड्यूसर के तौर पे लिया, मगर आपको पता है कि उस वक्त अब एक प्रोड्यूसर को ड्यूटी ऑफिसर के तौर पे भी काम करना पड़ता था। जी बिल्कुल। तो ये ड्यूटी रूम कहलाता है। और स्टेशन डायरेक्टर के बाद जब सब प्रोड्यूसर भी चले जाते हैं, पीएम भी चला जाता है, डिप्टी कंट्रोलर भी, तो ड्यूटी ऑफिसर इंचार्ज होता है ट्रांसमिशन का। ट्रांसमिशन की जो नब्ज है सर, वो ड्यूटी ऑफिसर के पास होती है। मेरे साथ जाफर बलोच साहब भी हैं, डिप्टी कंट्रोलर, इनसे हम थोड़ी देर में बात करते हैं और इनके जो तजर्बात हैं वो करेंगे। हमारे जो मुख्तलिफ स्टूडियोज हैं, साथ साथ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा अपना वो है, तो मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि मीडियम वेव स्टूडियो का ऊपर लगा हुआ है बैज और टाइटल, और ये हमारा 1 नंबर स्टूडियो है जहाँ से इस वक्त नशियात जा रही हैं। जाफर बलोच साहब डिप्टी कंट्रोलर प्रोग्राम हैं और जापान में इन्होंने 4 साल गुजारे और इनसे हम कुछ जापान के हवाले से बात करेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं जरा लाइव स्टूडियो में। जी हाँ, तो 1 नंबर स्टूडियो चलेंगे पहले? जी जरूर जरूर सर। अस्सलाम वालेकुम। जाफर भाई, मेरे देखने वाले को बताइए ये क्या है? अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम सर। ये फयाज शौकत साहब हैं, हमारे इंजीनियर हैं। इस वक्त हमारा प्रोग्राम चल रहा है रेडियो प्राइम टाइम। ओके। हमारा बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम है सर। ये हमारा पैनल है सर, ये 8 चैनल इनपुट है इसका। तो इसके साथ हम इसको अब फेसबुक पे भी दे रहे हैं। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की नशरियात आप फेसबुक पे देख रहे हैं, लाइव इंटरनेट पे है, स्ट्रीमिंग में है, तो आप इसको सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो ये पूरा पैनल है, ये फयाज साहब इसको ऑपरेट कर रहे हैं। जी सर। और इस वक्त ये प्रोग्राम जो है वो 2 चैनल FM 93 और मीडियम वेव 1035 किलोहर्ट्ज रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से बयक वक्त दोनों बराह रास्त जा रहे हैं। जी। अच्छा, तो ये प्राइम टाइम किस वक्त से किस वक्त तक है? सर ये है 12 बजे से 3 बजे तक। 12 से 3 बजे जी तक। चलिए ठीक है, हमने आपसे आपकी जापान की यादें जरूर शेयर करनी है। जी जरूर। लेकिन हम जाएंगे थोड़ी देर के लिए स्टूडियो। जब फयाज भाई गाना ऑन एयर करेंगे तब हम जाएंगे। तो हम अभी जाएंगे लाइव स्टूडियो में जहां इस वक्त हमारी सीनियर प्रोड्यूसर नसरीन फरीद प्रोग्राम कर रही हैं। हम उनसे भी बातें करेंगे। तो आप ये तो हो गया हमारा बूथ जिसको हम कहते हैं, तो उस कमरे को क्या कहते हैं? उसको स्टूडियो कहते हैं। उसमें लाइव स्टूडियो हम चलते हैं। हमारी सीनियर प्रोड्यूसर है नसरीन फरीद साहिबा, वो इस वक्त प्रोग्राम कर रही हैं। चले तो आइए उनसे उनको मिलवाते हैं। आए सर। अच्छा, आपको मिलवाते हैं हम नसरीन फरीद से। कैसी है नसरीन? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? नसरीन, क्या हो रहा है बच्चे? सर इस वक्त हमारा लाइव शो है रेडियो प्राइम टाइम, और प्राइम टाइम हमारा होता है 12:05 से 1 बजे तक। और इसमें जनाब हम अपने लिसनर्स को भी शामिल करते हैं। जिंदगी के मुख्तलिफ जो मौज़ूआत हैं उनके हवाले से भी गुफ्तगू होती है। और माशाल्लाह रेडियो पाकिस्तान मुल्तान, आप भी इधर रहे बतौर स्टेशन डायरेक्टर, तो रेडियो पाकिस्तान मुल्तान ने जनाब अपनी जो ये अच्छी रवायात हैं बरकरार रखी हुई हैं लिसनर्स को अपने साथ जोड़ने की। और हम जो अपना काम करते हैं वो इंतहाई कोशिश होती है मेहनत से किया जाए, लिसनर्स की जो पसंद नापसंद है उसे मद्देनजर रखकर किया जाए। आप कौन कौन से प्रोग्राम जो है इस वक्त प्रोड्यूस भी कर रही हैं? सर आजकल हमारा है ड्यूटी, तो ड्यूटी होती है, करनी पड़ती है। जब आप ड्यूटी टाइम में होते हैं तो आपको जो काम मिले जाहिर है आपने वो करना होता है। और हम तो अपना काम बड़ी इबादत समझ के करते हैं, मेहनत से करते हैं। मेरे पास सुबह का मॉर्निंग शो है किरण सवेर है, रेडियो प्राइम टाइम भी मैं करती हूँ। इसके अलावा मैं ड्यूटी ऑफिसर FM 93 पे भी हूँ, मीडियम वेव पे भी हूँ, ड्यूटी ऑफिसर का काम भी करती हूँ।
نہیں, یہ दुख ना मजेदार उस वक्त हो जाता है कि जब लिसनर्स का बड़ा अच्छा हमें रिस्पांस मिलता है. हमारे इदारे की इज्जत होगी, रेडियो पाकिस्तान की इज्जत होगी, तो यकीनन इसमें हमारी भी रिस्पेक्ट है. और मोहब्बतों के बोझ उठाना कभी मुश्किल नहीं लगता. बहुत खूब. क्यू शीट कहाँ है आपकी? ये हमारी रेडियो पाकिस्तान की FM 93 की क्यू शीट बनती है जनाब, और ये पहले से तय हो जाती है. 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक क्या कुछ जाना है, कौन सा गाना जाना है, किस वक्त जाना है, कौन सा टक्कर होगा, ये सारा इस पे मौजूद है कि क्या क्या प्रोग्राम जाने हैं. वो एक दिन पहले मीटिंग में डिसाइड हो जाते हैं. फिरोज साहब, हम आज की तो बात करेंगे. एक बहुत बड़ी तस्वीर यहाँ मौजूद है. मेरे बहुत सारे व्यूअर इस आवाज से तो यकीनन वाकिफ हैं, इस तस्वीर से वाकिफ नहीं होंगे. तफसील बताएंगे जाफर फिरोज साहब. सर, ये तस्वीर है महर साहब की, शमशीर हैदर हाशमी. अगर हम मुल्तान की, रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की तारीख की बात करेंगे तो शमशीर हैदर हाशमी साहब के बगैर ये तारीख मुकम्मल नहीं होती. जमहूर दी आवाज़ इब्तदाई दिनों से शुरू हुआ और आज तक पॉपुलर प्रोग्राम है. तो उसके 2 करैक्टर थे, मलिक साहब और महर साहब. ये महर साहब, जी, ये महर साहब थे जो अपने मखसूस लहजे में और मखसूस अंदाज में जो है वो बात करते थे. इंतहाई पॉपुलर. आज भी आप कहीं भी मुल्क भर में रेडियो पाकिस्तान मुल्तान का जिक्र करेंगे तो महर साहब का जिक्र साथ जरूर आता है. ये उनकी तस्वीर है. ये स्टूडियो हमने उनके नाम से मंसूब किया हुआ है. ये शमशीर हैदर हाशमी स्टूडियो हमने इसको किया हुआ जी. शमशीर हैदर हाशमी साहब जी, मैंने दोस्तों से कई दफा कहा है कि हम जब खुजदार में था, जहाँ ब्रावी बोली जाती है, और 88 की बात है, तो वहां जब बात हुई तो उन्होंने कहा मुल्तान से आए हैं, बादशाह वाले मुल्तान से. लाइव जाने वाली हैं नसरीन, हम थोड़ी सी लाइव गुफ्तगू सुनेंगे इनकी. हमें याद किया है असदुल्लाह साहब ने, और नज़ीर साहब दैया से हमें सुन रहे हैं, मोहम्मद सादिक साहब हैं और बरकत साहब हैं, और हमारे स्टूडियो में बहुत बेशुमार मेहमान तशरीफ लाए हैं जनाब. हम इनको भी खुशामदीद कहते हैं. साबका स्टेशन डायरेक्टर आसिफ खान तिजरान, हमारे DC प्रोग्राम जाफिर बलोच साहब स्टूडियो तशरीफ लाए. इसके अलावा बहुत सारे खूबसूरत चेहरे हमारे साथ मौजूद हैं. इनके नाम तो मैं नहीं जानती, लेकिन ये अपना कोई काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत से कर रहे हैं. और मेहनत करने वाले लोग जनाब हमेशा ही मुझे बहुत अच्छे लगे. और रेडियो पाकिस्तान मुल्तान में आप तशरीफ लाए, आपको वेलकम कहते हैं. और ये कहते हैं ना कि अचानक जब कोई आपके मेहमान तशरीफ लाएं तो उसमें भी एक खुशी होती है. आपको खुशामदीद कहते हैं जनाबे वाला. जी, कहाँ लेके जाएंगे? जी सर, आपको लेके जाएंगे म्यूजिक स्टूडियो, जहां आपने बहुत शानदार गाने तैयार किए. इस पे म्यूजिक पे आपको BBC एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला. ये रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की गोल्डन जुबली के मौके पर इस स्टूडियो को हमने मंसूब किया मुल्तान की नामवर मुगनिया सुरैया मुल्तानी कर साहिबा के नाम से. इसको अब हम सुरैया मुल्तानी कर स्टूडियो कहते हैं. अच्छा, माशाल्लाह, ये बहुत एक अच्छा कदम. और जो हमारा मोटो है रेडियो पाकिस्तान का, कुल्लुलिन्नास से हुस्ना, जी, वो सामने हमारे लगा हुआ है. मोनोग्राम है सर रेडियो पाकिस्तान का. जी, और इसी पे हम अमल करते हैं कि और लोगों से अच्छी बात करो. हम इखलाक की बात करते हैं. रेडियो पाकिस्तान का मोटो ही यही है. जी सर, ये म्यूजिक स्टूडियो है, इसमें अब हम दाखिल हो रहे हैं. तो ये साजिद मुल्तानी साहब जो है, ये अपनी रिहर्सल कर रहे हैं इफ्तिखार साहब के साथ. वाह वाह. जानी जगी कोल चंगे हो, मैं तो हर मान तुम्हारे अल्लाह करे उच्चियां बहुत बहुत शुक्रिया। और जाफर बलूच साहब, ये बताइएगा कि मैं तो शायद जानी पहचानी सूरत है, इस बारे में तारुफ कराए मेरे
सुनने वालों को, देखने वालों को? सर ये बहुत बड़ी शख्सियत हैं यहाँ मुल्तान की म्यूजिक के हवाले से। इफ्तिखार साहब हैं, इनके मैंडोलिन प्लेयर हैं, हमारे साथ यहाँ रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से शुरू से वाबस्ता रहे, आज तक हमारे साथ हैं और म्यूजिक कंपोजर भी हैं और बहुत बड़ी फैमिली से इनका ताल्लुक है। उस्ताद तसद्दुक जानी से वजीर अफजल साहब के ये शागिर्द हैं। हामिद अली बेला इनके मामू हैं और यहाँ इन्होंने लातादाद गीतों की कंपोजिशन की जो मुल्तान के मकबूल गीत हुए, रेडियो पाकिस्तान मुल्तान ने किए। आपके साथ बहुत अरसा काम किया इन्होंने। और मुल्तान दा जानी सारा प्यारा साजिद मुल्तानी, जिसका पहला गाना हमने यहाँ रिकॉर्ड किया था, धुन बनाई है हमारे इफ्तिखार ने। कैसा लग रहा है साजिद आज एक मुद्दत बाद? कितना अरसा हो गया मुल्तान रेडियो से? मैं 1998-92 से 98-99 से हूँ रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से मुंसलिक, और आपकी ही कमरे में मेरी जाए पैदाइश है एज ए गुलकार रेडियो पाकिस्तान। तो आसिफ खान खितरान साहब ने मुझे सिलेक्ट किया था यहाँ पर, और मेरा पहला ही गीत जो मैंने गाया था, अल्लाह करे उच्चिया रान तो सानिया माड़ियाँ, मेरा अपना लिखा हुआ है। और इफ्तिखार अहमद साहब की कंपोजिशन, उनकी कॉपीज भी है साथ मेरे, और बड़ा अच्छा ये बीट हुआ रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से भी मुझे पहचान है। और बड़ा अच्छा लगता है जब रेडियो पाकिस्तान आता है तो वही वक्त याद आता है हमें कि हमने बहुत कुछ सीखा है रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से। मैक पे गाना और कंपोजिशन को किस तरह गाना है, कैसे गाना है और किस स्टाइल में गाना है। रेडियो का एक अपना म्यार, एक अपना स्टेटस है। रेडियो हो चाहे हमारा पीटीवी हो, उसका एक अपना स्टेटस है गाने का। कैसेट में या ऑडियो सीडी में तो हम वीडियो में कुछ और गाते हैं, मगर जब रेडियो पर आते हैं जहाँ एक फिक्स गाना होता है और उसकी शायरी के हवाले से भी देखना पड़ता है, उसकी कंपोजिशन के हवाले से भी देखना पड़ता है, तो इसलिए हमें यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, ऐसा है, मैं अपने जो व्यूवर हैं उनको बताऊं, इफ्तिखार हमें बताएगा कि आज आपको सिर्फ एक कीबोर्ड में सारी चीजें मिलती है। इफ्तिखार जरा मेरे साथ खड़े होइएगा, और ये जो हमारे बहुत बड़े साज मौजूद हैं, जरा इनका तारुफ कराइए। आपके पीछे जो है ये क्या क्या चीज है? मेरे जो ये सितार है। अच्छा, ये सितार है, ठीक है। ये वायलिन है, ये वो वायलिन है जिसमें एक हमारी वो जी थी, अपना फिल्म थी साथ वाले मुल्क की, और उसमें वहां के मशहूर वो बजाते थे। ऐसा है? ये क्या है? ये मेरा साज है मैंडोलिन। तो हमें जरा ऐसे एक मिनट के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक नहीं है, ठीक ठीक ठीक, बहुत देर पड़ी थी। अच्छा, ये गिटार है, ये जिंदा है, बस पड़ी है। अच्छा, और ये वायलिन है, और अच्छा, और ये आप ये बताइए ये क्या है? ये सावन भादो है, जो बहुत बड़े सिंगर होते हैं ना क्लासिकल, वो सिर्फ इसको लेके गाते हैं, वो कोई साथ नहीं गाते। अच्छा, तानपुरा और इसमें क्या फर्क है? यही तानपुरा, इसको सावन भादो भी कहते हैं। अच्छा, वो सब ऊपर क्या चीज है? वो सरंगी है, इसमें 100 रंग है, इसमें 100 रंग, क्योंकि इसकी इतनी तरबे हैं, सारी मेल नहीं बनती है, फिर जाके सरंगी बनती है। वाह, एक तार से नहीं बनती, इसमें 100 रंगी है, 100 रंगी, ये 100 रंगी है, ये भी वायलिन है, वो भी तानपुरा, ये भी सितार है, ये सुरमंडल है। ठीक, बिल्कुल, जिसपे वो हाथ फिर के, ये उनके बक्स हैं जी, कुछ महफूज हैं। तो सब लोग चले गए, एक मैं रह गया। अल्लाह को भी बहुत देर तक सलामत रखे। हमारे पास पिछले दिनों भी इनके बेटी ने परफॉर्म किया। आइए हम आपको लिए चलती हैं एक और स्टूडियो में। आप जापान रही हैं, जापान और पाकिस्तान की ब्रॉडकास्टिंग में क्या फर्क आपको नजर आया? सर बेसिकली जो जापान की ब्रॉडकास्टिंग जो हम वहाँ कर रहे थे, वहाँ हम उर्दू सर्विस कर रहे थे। ठीक है। अब उनके उर्दू सर्विस के जो टारगेटेड ऑडियंस थे, उनके जो सामीन थे, वो थे पाकिस्तान, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है। उनकी ट्रांसमिशन का जो बेसिक पर्पस था वो था जापानीज टेक्नोलॉजी और कल्चर को जो है वो इन इलाकों में इंट्रोड्यूस करवाना अपनी नशरियात के जरिए। तो एक तो वहाँ वक्त महदूद था, 45 मिनट की ट्रांसमिशन थी, उसमें हमने न्यूज देनी है और उसके साथ साथ वहाँ के प्रोग्राम को भी, तो उनका ज्यादा फोकस वहां पे होता था। लेकिन उसके साथ साथ आप पे दोहरी जिम्मेदारी होती है, जब आप कहीं बैरून मुल्क अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो आपने अपने पाकिस्तान को भी वहां इंट्रोड्यूस करवाना है। तो ये यहाँ पे हम अपने लोकल सतह की नशरियात करते हैं, हम अपने कल्चर की बात करते हैं, अपने जो है वो रिवायात की बात करते हैं, तारीख की बात। वहां पे हमको बाज़-औक़ात कंपैरिजन भी करना पड़ता था। ओके, जापान की रस्म और रिवाज शादी के हवाले से ये हैं
اور اس کے حوالے سے یہ ہیں. تو پاکستان میں یہ رسوم کس طرح سے ادا کی جاتی ہیں. اگر کوئی ٹیکنالوجی جاپان میں انٹروڈیوس ہو رہی ہے، نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہو رہی ہے، تو پاکستان میں اس کے مقابلے میں پاکستان کس جگہ پہ ہے یا کس طرح سے ہے. تو یہ ساری چیزیں، یہ ایک فرق تھا نشریات کا. ہم لائیو اسٹوڈیو سے نکلے، ایک اور اسٹوڈیو کی طرف آئے ہیں. ہم یہ اسٹوڈیو آپ ہمارے ناظرین کو دکھانا چاہیں گے؟ یہ سیمینار ہال ہے ہمارا جی. یہاں پہ ہم اپنے مذاکرے ریکارڈ کرتے ہیں. جی بلوچ صاحب، ہم آئے ہیں، آپ بتا رہے تھے سیمینار ہال میں. سر یہ ہمارا ہے، یہاں پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں. اسپیشلی ہمارے جو آڈینس پارٹیسپیٹڈ پروگرام ہوتے ہیں، کوئی میوزک کا پروگرام کرنا ہے، ہم نے ڈیبیٹ کرنی ہے، کوئز شو کرنا ہے، کوئی سیمینار کرنا ہے، تو وہ جو ہے وہ ہم یہاں پہ کرتے ہیں. یہاں زیادہ آڈینس پارٹیسپیٹ کر لیتے ہیں، 40 سے 50 لوگ. اور اگر کوئی ڈسکشن کرنی ہے 3 سے 4، میرے خیال میں وہ جو میز آپ کی ہے جی وہ ڈسکشن کے لیے آپ نے، یہ ڈسکشن کے لیے سر. ہم نے اگر 3 سے 4 لوگوں نے کو مذاکرہ کرنا ہے ہم، تو اس پہ پھر یہاں پہ ہم اس کو ریکارڈنگ کر لیتے ہیں. تو باقی جس طرح کا پروگرام ہوتا ہے وہ روسٹرم ہے ہمارا. تو پھر جس طرح کا پروگرام ہوتا ہے اس کے مطابق پھر ہم اس کو ارینجمنٹ کر لیتے ہیں. اس کو بہت اچھی بات. اور ہمارا ایک آڈیٹوریم بھی اب بننے کو ہے. جی وہ ہے سر 200 سیٹوں کا آڈیٹوریم ہے. وہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے. انشاءاللہ وہ جلد ہی مکمل ہو جائے گا. تو پھر یہاں کی جو سیاسی اور سماجی تنظیمیں ہیں، جو ادبی پروگرام ہیں، جو ہم ریڈیو پاکستان اپنے پروگرام جو ہے وہ یہاں کے سامعین کو، یہاں کے لوکل لوگوں کو بہت ساری جو ہے وہ تفریح ملے گی اس آڈیٹوریم کے مکمل ہونے سے. ٹھیک. ریاض ملسی بھائی ہمارے ساتھ ہیں. ہم انہیں کہیں گے کہ جو ہمارا اگلا اسٹوڈیو ہے اس کی ہمیں وزٹ کروائیں. اور میرے خیال میں وہ FM 93 ہے. جی سر، یہ FM 93 ہے سر. اور آپ نے ابتدا میں ایک سوال پوچھا تھا کہ ریڈیو پاکستان کون سے پروگرام کر رہا ہے آج کل، تو اس کی ایک ایکسٹینڈڈ کڑی اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ کمیونٹی براڈ کاسٹ کا چینل ہے. 2 کلو واٹ پر یہ مشتمل ہے، اس کا ٹرانسمیٹر. اور اس پر ہم خواتین کے پروگرام، یوتھ کے پروگرام، سینئر سٹیزن کے پروگرام، ٹھیک ہے سر، بچوں کے پروگرام بھی ساتھ ہم ادھر کرتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے پروگرام بھی کر رہے ہیں. تو بیسیکلی یہ کمیونٹی براڈ کاسٹ کا چینل ہے. اچھا، اتفاق سے میں بھی اس چینل پہ پروگرام آج کل بھی کر رہا ہوں. انجم پتافی مجھے پکڑ لاتا ہے اور یہاں ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. یہی والا اسٹوڈیو ہے؟ رو ہی تھل دمان آپ کر رہے ہیں. وہ جو خالد اقبال صاحب بھی ہمیں پاندی ٹور جول کرواتے تھے. لیکن ایک چیز سر آپ بھول رہے ہیں، آپ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جب رائٹ فرام دا بگننگ 2007 میں FM 93 کا آغاز ہوا تھا، آپ اس کے پہلے انچارج بھی تھے. آپ اس کے پہلے پروڈیوسر بھی تھے. یہ بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے. بالکل. یہ فون کالز کے لیے جی لائیو کالز لیتے ہیں اس ٹیلی فون کے ذریعے. یہ ہمارا آپس میں رابطہ کرتے ہیں. یہ سر لیٹسٹ کنسول ہے جو ہمیں ساؤتھ کوریا نے گفٹ کی ہے. اچھا. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان بھر میں کسی ریڈیو اسٹیشن پہ یہ والا کنسول نہیں ہے. الحمدللہ سر، یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی، جس طرح ابھی جعفر بلوچ صاحب بھی سر آپ سے بات کر رہے تھے کہ الحمدللہ جو مشینری اس وقت ریڈیو پاکستان ملتان کے تمام چینلز کے پاس ہے، یعنی 4 چینلز کام کر رہے ہیں سر یہاں. مین ریڈیو پاکستان، FM 101، FM 93 اور صوت القرآن، 4 چینل ایک ساتھ آن ایئر ہے. اچھا ریاض، ہمیں میرے والا وہ جو اسٹوڈیو جہاں ذرا تھوڑا سا وہ ہوتا ہے وہ تو دکھائے ہمیں. آپ والا اسٹوڈیو موسیقی کا. آئیے، آپ نے موسیقی کے پروڈیوسر کے طور پہ بھی شاہکار گیت پروڈیوس کی ہے. آئیے اس جگہ آپ کو لے کے چلتے ہیں. جی سر آصف کی فرمائش پر اور N News HD کی ٹیم کی ڈیمانڈ پر اس وقت ہمارے ساتھ ہے ریڈیو پاکستان ملتان کے ایک پاپولر کریکٹر ماڈرن بھولا، جو آپ ماشاءاللہ مختلف چینلز پہ بھی پرفارمنس دیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماڈرن بھولا جی آیا نو ہاتھ مکی کھلی ہے. جی آیا نو، خیر مبارک جی. اے مارا اٹھ کتھے تواڈا؟ گل ہے بھئی اج میں ہارا والا چولا مانگواں لیا موں. اچھا. مچھا نو کھاسے والا تیل لایا موں. تو مچھا لگدا تواڈیاں کہ پٹ گئی دی. سرمے دے ڈورے اے کناں تائیں گئے کھلن تے خصا تے لاچا ہی مانگواں تے اج بھرجائی تواڈی آدھی ہے بھئی بولیا بڑا سونا لگدا پیا. نہیں مچھا کہ نہیں بھابی نے تے نہیں پٹ گئی دیا. دیکھنا وہ عارضی پروگرام ہوندا نا جی. ہاں عارضی بندے دا کوئی پتہ لگدا تے مارا اٹھ باہر کھڑا کیتا وے. ہوش
मारा उठ आजकल बड़े नखरे कर रहे हो जदों दा पेट्रोल महंगा होया ना जी मारा उठ दे नखरे मारदे कोई नहीं उन्होंने पता भी ये ब्लैक मेलिंग तो चलदी है खुशखबरी रात हुकूमत ने पेट्रोल ते डीजल सस्ता कर दिता है मोड़ भी मेरे मारे उठ दी आमियत अपनी जगह ते कायम दायम खलोती है। अच्छा मॉडर्न भोला एक सुपर टीम आई हुई है एन न्यूज HD दी आसिफ खान खितरान साहब जीशान गिलानी जीशान हैदर हारून ताहिर जी अनम फरहाना और जीशान अगेन जीशान अच्छा पितरेर मेरा रियाज महल सी जरा उनको जी आया को तो सारे नजर आए जात मारका बैठे हो बैठो बैठो तेंदा डर हाई रात डरा गई आज मोड़ कहीं दी जात डरा गई जात कोई पक्की मकई माया जात मुहब्बतां दी असाडे मन विच पई माया मोड़ जात अपने गिरेबां जात च पावां मोड़ कोई ऐ भी नजर नहीं आंदा छोरी ओ सिर ते छिपरा काट लियो मॉडर्न भोला आए खले ने जात जात मासी मोड़ साहब ठिकड़े के साहब होंगे तो मैं गुजारिश कर दूं इसी हवाले से चलो ये तो करेक्टर की बात है। सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ मोहतरम जनाब आसिफ खान साहब का और ये किंग मेकर लोग हैं इन्होंने तो हमें ग्रूमिंग दी मौका फराम किया और आई एम वेरी नियर टू सेलिब्रेटिंग माई सिल्वर जुबली 2 जून मंगल का दिन 1998 यही स्टूडियो यही रेडियो पाकिस्तान शाम 7 बजे प्रोग्राम मेरा जो पहला ऑन एयर हुआ उसका नाम था रोह रोही थालदमान और प्रोड्यूसर थे मोहतरम जनाब रियाज महल साहब। जी एक मुख्तसर से वक्फे के बाद हम वापस लौटे हैं और सुरों की दुनिया से हम आए हैं IT की दुनिया में जहां हमारी सारी टेक्निकल बातें हैं। कहाँ लेके आए हैं हमें बलोच साहब? जी आसिफ खान साहब ये मास्टर कंट्रोल रूम है। हमारी जितनी भी नशरियात सामीन तक पहुंच रही है वो यहाँ से होके पहुंच रही है और इसकी टेक्निकल तफसीलात क्या हैं ये आपको बताएंगे हमारे जो सीनियर ब्रॉडकास्ट इंजीनियर हैं इस वक्त शिफ्ट इंचार्ज हैं वहीद साहब आपको इसकी तफसीलात से आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वहीद भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। ये क्या अपने सिलसिला माशाल्लाह इतने सारे चीजें हैं तो मेरे जो हमारे देखने वाले हैं उनको बताएं जरा तफसील। पहले ये बताने से पहले मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ यहाँ रेडियो पाकिस्तान के कंट्रोल रूम में। तफसील आसिफ भाई ऐसा है कि हम 4 FM स्टेशन उनकी ट्रांसमिशन दे रहे हैं और एक है हमारा मीडियम वेव स्टेशन जो कि 1971 से इस पूरे वसेब को रेडियो ट्रांसमिशन से मुस्तफ़ीद कर रहा है। तो उन तमाम स्टेशंस को हम प्रोग्राम जो है मुख्तलिफ स्टूडियो से इस कंट्रोल रूम से फीड करते हैं और जो इसमें ज़माने के साथ साथ हमने जिद्दत हमने भी रेडियो ने भी इख्तियार की वो ये है कि हम अब तमाम प्रोग्राम इंटरनेट पे भी मुहैया कर रहे हैं और जो कि मोबाइल की एप्लीकेशन पे भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा एक और अहम चीज़ जो हम यहाँ से ट्रांसमिट करते हैं वो अपनी नशियात के दौरान हर घंटे के बाद नेशनल न्यूज़ वो ब्रॉडकास्ट की जाती हैं। उसके लिए हमारे पास डाउन लिंक करने के लिए उन न्यूज़ को ये सैटेलाइट सिस्टम्स लगे हुए हैं। ये आप 3 स्क्रीन्स देख रहे हैं इनसे हम वो न्यूज़ लेके तो अपने तमाम FM स्टेशन और मीडियम वेव चैनल के ज़रिए नशर करते हैं। वो सेटअप भी सारा हम यहाँ से देखते हैं और बैक साइड पे हमारे पास ये कंप्यूटर लगे हुए हैं जो कि लाइव प्रोग्राम दे रहे हैं वो भी हमने मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को फीड किए हुए हैं। अच्छा ये जो आपके जो कंप्यूटर आप बता रहे हैं हमारे वो लगे हुए हैं ये लाइव स्ट्रीमिंग है जो इंटरनेट पे जा रही है और पूरी दुनिया में सुनी जाती है? जी हाँ, ये 3 चैनल हम FM अपने और मीडियम वेव ये हम वेबसाइट HTML उस पे भी दे रहे हैं और इसके अलावा एक बहुत बड़ी सहूलत है अब लिसनर्स के लिए कि लिसनर अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भी इसे सुन सकते हैं। हमारी रेडियो पाकिस्तान की एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल किया जा सकता है और उस पे सिर्फ मुल्तान के चैनल नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के जितने भी रेडियो के चैनल हैं रेडियो पाकिस्तान के तहत चलने वाले वो तमाम उस पे अवेलेबल हैं। जी जैसा कि अभी अभी वहीद साहब ने बताया कि हमारे 3 ट्रांसमीटर तो यहाँ से FM के नशरियात दे रहे हैं और वो फिर ऐप के ज़रिए भी आप सुन सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो दुनिया में एक बहुत बड़ा सिस्टम है मीडियम वेव का जिसे हम रेडियो मुल्तान आगाज़ से शुरू किया था उसकी तफसील हम जानना चाहेंगे। वहीद भाई ये मीडियम वेव की नशरियात आप कैसे देते हैं?
अच्छा, एफएम से वो बड़ा मुख्तलिफ है तरीका। वो ऐसा है कि हम यहाँ स्टूडियो से जो आउटपुट होती है वो एक एफएम ट्रांसमीटर को फीड करते हैं। उसे हम कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में एसटीएल यानी स्टूडियो ट्रांसमीटर लिंक। उसका हमारे पास यहाँ ट्रांसमीटर लगा हुआ है, और जो हमारी ट्रांसमीटर साइट है वो बिल्ली वाला एक इलाका है बहावलपुर रोड पे, तो वहाँ ट्रांसमीटर साइट है, तो वहाँ रिसीवर लगा हुआ है। वो उसे डाउन लिंक करते हैं रिसीवर से लेके, और फिर वहाँ से नशरियात देते हैं मीडियम वेव की, तो उसे स्टूडियो ट्रांसमीटर लिंक के ज़रिए हम फीड कर रहे हैं। और उस की नशियात जो है आप पूरे पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान के बाहर भी सुन सकते हैं रेडियो सेट पे। और जो एफएम की नशियात हैं वो आप ऐप पे भी सुन सकते हैं, और मुल्तान शहर में वाले भी सुन सकते हैं। बहुत शुक्रिया वहीद भाई, आपने इतनी तफसील से बताया। सलामत रहें। कुछ और एक दो जुमले आप बताना चाहें, कोई खास? जी बिल्कुल, रेडियो पाकिस्तान मुल्तान, अब जो लोग कुछ अरसे के बाद अगर यहाँ आते हैं तो वो इसे पहचान नहीं सकते, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान मुल्तान बिल्कुल तब्दील हो गया, और ये बिल्कुल अब नए जदीद तकाज़ों के मुताबिक यहाँ की मशीनरी भी अपडेटेड है, और टेक्नोलॉजी भी नई है, और लोग भी ट्रेंड हैं। और हम अपने इदारे में पूरे पाकिस्तान में चंद जो स्टेशन जिनकी कारकर्दगी अच्छी है उनमें शामिल होते हैं। हमें हर शोबे में रेडियो पाकिस्तान मुल्तान ने अपने आप को मनवाया है। बहुत शुक्रिया वहीद भाई। और हमने 4 स्टूडियोज देखे हैं, एक स्टूडियोज हमने और देखना है। बलोच साहब, आप हमें कहाँ लेके जाएंगे? सर, ये है हमारा ड्रामा स्टूडियो। ये 1971-70 से आज तक हमने बहुत सारे ड्रामे यहाँ प्रोड्यूस किए, और रेडियो पाकिस्तान मुल्तान को ये एजाज़ हासिल है कि रेडियो पाकिस्तान मुल्तान ने तकरीबन तमाम मौज़ूआत पे ड्रामे किए हैं। वो सोशल हैं, और जितने भी इश्यूज़ हैं उनके हवाले से लोगों को अवेयरनेस देने के लिए। और ये वो स्टूडियो है जहाँ पे मोहसिन गिलानी, सोहेल असगर, तमाम लोगों ने यहाँ पे परफॉर्म किया है। तो ये हमारा ड्रामा स्टूडियो है। ये हमारा स्पेशल माइक है जिस पे हम रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ये वो पूरा माहौल इस तरह से, यहाँ से हम पूरा माहौल ड्रामे का क्रिएट करते हैं। जी, और आसानी ये होती है कि हम साउंड इफ़ेक्ट के साथ जो है ड्रामा आप तक पहुंचाते हैं। ये हमारे 5 स्टूडियोज थे जो बलोच साहब ने और रियाद मेलसी साहब ने हमें विजिट करवाए हैं। हम चलते हैं ज़रा इनके ऑफिस और थोड़ी सी गुफ्तगू वहाँ करते हैं। जी, एन न्यूज़ HD के मेरे तमाम देखने वाले दोस्तों, हमने रेडियो पाकिस्तान मुल्तान के तमाम स्टूडियोज़ देखे, लेकिन एक FM रह गया था, और मैंने स्टेशन डायरेक्टर साहब को, खालिद इकबाल भाई को गुजारिश की कि हमें उसका भी तारुफ करवा दें कि ये कौन सा स्टूडियो है और यहाँ से क्या ब्रॉडकास्ट होता है। जी खालिद भाई। शुक्रिया आसिफ खान साहब। ये रेडियो पाकिस्तान का एक अलहदा से यूनिट है FM 101। ये नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे हम प्रोग्राम इससे नशर करते हैं ताकि हमारी नौजवान नस्ल जो हमारी पॉपुलेशन का तकरीबन 60% है, उनकी रहनुमाई के लिए, उनकी ज़हनी तालीम और तरबियत के लिए, उनको एंटरटेन करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए स्पेशल ये एक चैनल है। और ये ख़ास तौर पे उनमें बहुत मकबूल है, क्योंकि प्रोग्राम हमने कुछ इस तरह के तरतीब दिए हैं जिनमें वो बराह रास्त लाइव टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए शिरकत करते हैं। अपनी तजावीज़, अपने मशवरे, अपनी पसंद के गाने वगैरह भी वो उससे सुनते हैं। मेरे ख्याल में खालिद इकबाल भाई, हमारे बाकी चैनल्स भी उनकी ड्यूरेशन ज़्यादा है, लेकिन इसकी शायद 24 आवर ये नशर होते हैं इससे प्रोग्राम। और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो नौजवानों में ये जो प्रोग्राम नशर होते हैं ख़ास मकबूल हैं। तो आपके चैनल के तवस्सुत से मैं यही कहूँगा कि जो हमारे सुनने वाले हैं वो इस चैनल को पसंद करें, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ़ लाए। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा पूरी टीम रेडियो पाकिस्तान की, खालिद इकबाल साहब की सरबराही में मेरे दोनों मोहतरम साथी रियाज मेलसी साहब, जाफ़र बलोच साहब और तमाम टीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, हमारे देखने वालों को अपने स्टूडियोज़ की सैर कराई, अपने प्रोग्रामों के बारे में तफसीलात बताई, और इसके साथ ही और साथ चाय पिलाई। TV आसिफ कैतरान से आज के प्रोग्राम के साथ अब इजाज़त दीजिए। आपका बेहद शुक्रिया, और आप दोस्तों का हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ का मेज़बान सैयद अमीन गिलानी। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजू हैं डॉक्टर मुस्तफ़ा साजिद, एसोसिएट प्रोफेसर हैं मुल्तान डेंटल कॉलेज के। अक्सर आप एन टेलीविज़न न्यूज़ की स्क्रीन पर उनको देखते हैं कि डेंटिस्ट दांतों के मसाइल के हवाले से हम अक्सर उनका कीमती टाइम जो है लेते रहते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम करते हैं स्टूडियो में आपको। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये फरमा दीजिए कि यकीनन के दांत जो है इंसान के या किसी जानवर के, तो सबसे पहले तो मैं बात ये करूंगा कि अल्लाह की तरफ से बड़ा खूबसूरत तोहफा आपको दिया गया है। यकीनन दांत आपके चेहरे को नुमाया खूबसूरत ही नहीं करते, बल्कि आपके बाकी तमाम जिस्म के जो मसाइल जो हैं उसके लिए भी बड़े कारआमद साबित होते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मेरी कोशिश होगी कि वो दोस्त जो हमारे मज़ाफ़ात में हमें सुन रहे हैं इस टाइम टेलीविज़न स्क्रीन पर, जो ख़ास तौर पर दांतों पर अपनी तवज्जो नहीं देते, उनके हवाले से डॉक्टर साहब से हमारी गुफ्तगू का बुनियादी मकसद ही आज का ये है कि ताकि उनको अंदाज़ा हो सके कि दांतों की केयर जो है वो कितनी ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताएं कि एक आम आदमी जो है, सादा आदमी जो है, वो दांतों की केयर के लिए उसको बुनियादी तौर पर क्या करने की ज़रूरत है? सर, दांत जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इंसान ज़िंदगी में, बॉडी के और जिस्म के और अज़ा की तरह। दांतों में भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जिसे हम बाकी अज़ा की तरफ ध्यान देते हैं। उनकी सफाई सुथराई दांतों की और दांतों की हिफाजत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने खाना इसी से खाना है। अल्लाह ताला ने जो भी रिस्क दिया है वो रिस्क हमने दांतों से ही खाना है। अगर दांत होंगे तो खाया जाएगा, अदरवाइज नहीं खाया जाएगा। और ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है, तो इसके लिए दांतों की सफाई बहुत ज़रूरी होती है और दांतों की हिफाजत करना। तो दिन में कम से कम 2 दफ़ा ब्रश करें, कोशिश करें। अगर हर खाने की बात करें तो बहुत बेहतर है, अगर नहीं तो दिन में 2 दफ़ा ज़रूर दांतों की सफाई रखें। बल्कि सुन्नत भी है, हर वज़ू के साथ जो है मिसवाक करना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, और वो इसी वजह से ही है कि जो दांतों की हिफाजत होती है वो पूरे मुँह की बल्कि पूरे जिस्म की हिफाजत के बराबर होती है। डॉक्टर साहब, ये हमारे यहाँ ये भी एक आपने देखा कि एक आम आदमी के जहन में है कि जो डॉक्टर जो हैं, हमारे जो डेंटिस्ट हैं ख़ास तौर पर, वो इतने ज़्यादा महंगे होते हैं कि एक आम आदमी की पहुंच से दूर होता है उनको चेकअप करवाना, उसकी दांतों की अगर कोई तकलीफ़ है तो उसकी ट्रीटमेंट। तो क्या समझते हैं कि ऐसी क्या बुनियादी वजह है कि जो हमारे जो दांतों की ट्रीटमेंट जो है वो इतनी महंगी है? दांतों की ट्रीटमेंट महंगी नहीं है, सिर्फ जो हमारी आप समझ लें कि निगलिजेंस होगी या हम जो तवज्जो नहीं देते वो हमें महंगी पड़ती है। इनिशियली इसमें स्टार्ट में होता ये है आगाज़ में कि दांत में थोड़ा सा कीड़ा लगता है, दांत का कलर चेंज होता है, ये हल्का सा ठंड गर्म लगता है, तो हम डॉक्टर को पास नहीं जाते। हम ऐसे कोई हर्बल मेडिसिन लेके, कोई बाजार से दवाई लेके खा लेते हैं या पेस्ट अच्छा इस्तेमाल कर लेते हैं, उससे बेहतर हो जाता है। लेकिन वही चीज़ जब बढ़ते बढ़ते ज़्यादा होती है तो दांत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है। जो जो दांत की बीमारी बढ़ेगी उसके मर्ज की जो है वो खर्चा कॉस्ट वो बढ़ जाएगी। तो बेसिकली वो कॉस्ट या खर्चा ज़्यादा नहीं है, बल्कि जो हमारी निगलिजेंस है, जो हमारी हम उसे तवज्जो नहीं देते, वो हमें महंगा पड़ता है। नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि जब आप बुनियादी तौर पर जब तवज्जो नहीं देंगे, चाहे वो दांत हैं या कोई भी जिस्म का ऑर्गन है, तो यकीनन एक वक्त आने पर जो है वो आपको इंतहाई तशवीशनाक हालत से जो है उससे दो चार होना पड़ेगा। उसमें आपके पैसे भी जो हैं वो यकीनन आपके ज़्यादा लगेंगे। तो ज़रूरी इस जो बात डॉक्टर साहब ने बताई कि आप वक्त से जो है जब छोटी मोटी ही तकलीफ हो, चाहे डॉक्टर साहब जिस्म का कोई भी ऑर्गन है, तो यकीनन अगर आप बुनियादी तौर पर छोटी सी है, किसी स्टीरॉइड, किसी कोई वो जो ऐसे कोई पेन किलर लेकर और वक्ती तौर पे आप समझते, अक्सर मैंने दोस्तों को देखा है कि उन्होंने वो पेन किलर ली और वक्ती तौर पे अपना काम वो फिर एक दिन आता है कि वो फिर ज़ाहिरी बात है वो फिर उनके वो दांत निकालने पड़ते हैं, नए दांत लगाने पड़ते हैं, वो एक लंबा एक प्रोसेस है। तो यकीन वो फिर उनको वो महंगा पड़ते हैं। डॉक्टर साहब ये भी फरमा दीजिएगा कि अगर नॉर्मल जो है चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, तो वो अपने दांतों की सफाई के हवाले से जो उसको क्या उसकी तरतीब बनाएं, क्या उसका वो हो, और ख़ास तौर पे मैं छोटे बच्चों का भी मैं इसमें जिक्र करूंगा कि कितनी उम्र से जो है बच्चे जो हैं हमारे वो ब्रश जो हैं वो स्टार्ट कर दें, और फिर उसके बाद जो है एक टाइम जो है जब तक अल्लाह पाक ने आपको ज़िंदगी दी है, आप तंदुरुस्त तवाना है,